Hello dear students, I am again with my another video. It is of class 10th biology, chapter 6 life processes. मैंने अपनी पिछली तीनों वीडियो में आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स भी मिले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिया है, एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं। सो जस्ट आई होप कि आप उसको लर्न करने के साथ साथ अब इस टॉपिक को भी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। सो एज स्टिल वी स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन, it is a next one part of the respiration. In this, you will come to know about the mechanism of respiration, how lungs are doing functioning in our body. It is a part 5 and it will tell you the importance of lungs, as nowadays we all are facing a problem with COVID-19. Okay? So this virus is infected to our lungs only. So you should learn the mechanism of the lungs. Okay? You should know about the condition of the lungs, how can you improve it, how can you take care of your lungs. So through this mechanism of respiration, you will get very helpful condition for the good health. Now, let's see the difference between aerobic and anaerobic respiration. In part 4, I told you about the aerobic and anaerobic respiration, as aerobic respiration complete in the presence of oxygen. So here the difference between aerobic and anaerobic is important. So that's why in that video I have given the complete definitions. Now here I am telling you the difference between aerobic and anaerobic respiration. आपको ये बहुत अच्छे से याद करना होता है. So just see about the aerobic respiration, as it takes place in presence of oxygen. ठीक है. Second point is its end products are carbon dioxide and water. Third is more energy is released, as aerobic respiration present in the multicellular organisms. So it provides us more energy. It is equal to about 38 ATP. As it takes place in cytoplasm and mitochondria. Okay, and here complete oxidation of glucose takes place. So these are the 5 important points for the aerobic respiration. One more important point is 38 ATP molecules released in aerobic respiration. ठीक है, इनके examples क्या हैं? Plants, animals and human beings. They all are considered as multicellular organisms or eukaryotes. ठीक है. Now let's see the difference of anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. ठीक है. एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं इनके? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने आपको एक्टिविटी शो की है पार्ट 4 में, वहां से आपको याद आ रहा होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. एज इट इज completing in the absence of oxygen, so less energy is released. That energy is equal to 2 ATP only. ठीक है. It takes place only in the cytoplasm. अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है या प्रोकैरियोट्स में भी होता है, तो ये केवल साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाता है, जबकि एरोबिक साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही जगह पर कंप्लीट होता है. अब anaerobic respiration is an incomplete oxidation of glucose. ठीक है. So it is also a difference of aerobic and anaerobic respiration. Another one difference, it is important also, 2 ATP molecules released in anaerobic respiration. ठीक है. तो आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ये आपसे पूछा जाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? यीस्ट, बैक्टीरिया एंड इन मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. यीस्ट फॉर द फर्मेंटेशन, आई हैव शोन यू द एक्टिविटी. आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिए. ठीक है. शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे वो भी इन चीजों को आसानी से याद कर पाए. बैक्टीरिया है. मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड्स. जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी क्रैम्प्स बनते हैं, तो दैट इज द significance
of producing lactic acids in the human muscles. Okay. Now let's see the breakdown of glucose by various pathways. अब जो भी फूड हम खाते हैं वो चेंज होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होता है, सो दैट आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जस्ट सी हियर, ग्लूकोज है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूल होते हैं। अब जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पायरुवेट में यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो whenever glucose converted into pyruvate, that means 6 carbon molecules converts into 3 carbon molecules in our body, in our cell. That process is known as glycolysis, ठीक है। और ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन 2 जगह पर होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक। अब पायरुवेट है, पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, फर्दर इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, सो नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द 3 कंडीशंस। As if it is utilizing by the yeast, then it will show the absence of oxygen, क्योंकि अभी यीस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन होता है यीस्ट में, जो एक एनारोबिक रिएक्शन है। एनारोबिक रिएक्शन कहाँ पर होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर अब ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड इट रिलीज एनर्जी। अब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर 2 ATP, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पर होता है, ये होता है ह्यूमन मसल सेल में, ठीक है। यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, आपने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होती है। After that, last one process is presence of oxygen. That is that process which is present in the higher animals or the human beings. That process is known as aerobic respiration. So that these 3 processes completed in the mitochondria. And after the aerobic respiration, what does release? Carbon dioxide, water, and energy. So here this is the breakdown of glucose by various pathways. ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में पढ़े, एक स्टेप आप पढ़ रहे हो ग्लाइकोलिसिस, एक स्टेप आप पढ़ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जो प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। सो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन विच कंप्लीट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, these processes are completing inside the cell. अब ये सेल के साइटोप्लाज्म में ना कंप्लीट होकर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक ऑर्गेनल में हो रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स दीज आर कंप्लीटिंग इनसाइड द सेल। सो दैट काइंड ऑफ सेल दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डार्क रिएक्शन, ठीक है। और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी इसके बारे में डिस्कवरी की थी वो मिस्टर क्रैब ने किया था, तो उन्हीं के नाम से इसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द एनारोबिक कंडीशंस, एरोबिक कंडीशंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन, what is the light reaction. Light reaction is known as glycolysis. Where does it take place? It takes place in cytoplasm, ठीक है। next, where does dark reactions complete? So dark reaction occur in mitochondria. What is another term which we can use for the Krebs cycle is a for the dark reaction, so it is a Krebs cycle, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से बनाइए, ड्रॉ कीजिए और इसके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लर्न कीजिए। नाउ let's see the respiratory organs in human beings. As the main organs of the respiratory systems are
Nostrils. As you know, your nose is having the two holes through which we are intaking the air inside and we are throwing the air outside. तो वो जो होल्स होते हैं वो नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द नेजल कैविटी, जो आपकी नाक का स्ट्रक्चर बना रहा है, नोज का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी. एंड next is pharynx. Pharynx is that part which is making the path for the food and air. तो ये कॉमन पाथ होता है pharynx, जिससे फूड और एयर दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन पार्ट इज द लैरिंक्स. अब लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स इज द सेपरेट पाथ फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक. pharynx तो कॉमन पाथ हो गया, but larynx is a separate path for the respiratory tract. Next is trachea. Trachea है tubular like structures in your neck. Just how can you feel it? Trachea को आपको फील करना है. आप अपनी फिंगर लीजिए और फिंगर को अपने गले में ऊपर से नीचे तक फिराकर देखिए आप इसको. Just touch with your finger and just you have to see at the above side. तो आपको यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फील होगा. ठीक है. तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? ट्रैकिया कहलाता है. नेक्स्ट इज ब्रोंकाई. ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड होता है. ठीक है. तो जहां पर ये डिवीजन कर रहा है वो कहलाता है ब्रोंकाई. अब जो ब्रोंकाई हैं वो आगे और सब डिवाइड होते हैं, जैसे रूट्स होती हैं वो आगे आगे जाके डिवाइड होती चली जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. ठीक. अब ब्रोंक्यूल्स ये सभी पार्ट्स मिलकर जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, और एक लंग्स जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. लंग्स के ऊपर एक बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें होल्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाता है लंग्स. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया हमारा, जो मेन हो गया लंग्स. नेक्स्ट इज द डायफ्राम. तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम इज हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ द लंग्स. जब हमारी बॉडी में एयर अंदर जा रही है या एयर बाहर आ रही है, एट दैट टाइम डायफ्राम प्रोवाइड हेल्प टू द लंग्स. ठीक है. तो आपको पहला काम क्या करना है कि आपको ये 9 नेम्स सीक्वेंस में याद करना है. ठीक है. अब एक बार डायग्राम में भी देख लेते हैं. देखो यहाँ पर ये नोज है. नोज इज द स्टार्टिंग पॉइंट इज द नॉस्ट्रिल, और ये जो कैविटी है दैट इज नेजल कैविटी. नाउ इट इज गोइंग टू टिल योर स्टार्टिंग ऑफ द नेक. आपके गले की शुरुआत तक जा रही है ये पार्ट कहलाता है फेरिंग्स. फेरिंग्स किसके लिए है? यहाँ से हमारा फूड भी अंदर जाता है और एयर भी अंदर जाता है. ठीक है. तो फूड तो एलिमेंट्री कैनाल में अलग सेपरेट चला जाता है, लेकिन जो हवा है वो यहाँ एक और पाइप के थ्रू दूसरे ट्रैक पर जाती है, वो ओपनिंग कहलाती है लैरिंक्स. ठीक है. अब ये देखो ये लैरिंक्स किससे टच हुआ है, किससे कनेक्टेड है? ट्रैकिया से. ये ट्रैकिया ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके गले में आपको फील होता है. अब ये देखो यहाँ पर ये ट्रैकिया है, ये आगे जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या पार्ट कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ब्रोंकाई. ठीक है. अब यही ब्रोंकाई अंदर देखो ये ब्रांच अंदर जा रही है और ये कई और सब ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो ये कहलाता है ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये पूरा स्ट्रक्चर आपका हो गया लंग्स. यहाँ पर ये देखो एक शीट लगी हुई है डायफ्राम, दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है. रिब केज से कवर्ड रहते हैं लंग्स, जिससे कि प्रोटेक्शन मिलता रहे इनको. तो ये डायफ्राम है. जब एयर अंदर जाएगी और एयर बाहर जाएगी, उस पूरे प्रोसेस में डायफ्राम हेल्प करता है. सो दीज आर द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. आपको ये लाइन से यदि आप रखेंगे, नंबर 1 पर हमने नॉस्ट्रिल पढ़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम, then you will not forget the mechanism of respiration. So now in the next video I will start the process of respiration. So be ready and wait for my next video.